السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر رفیق محمد افریدی۔ آج کا ہمارا موضوع یا جس بیماری پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے ڈائریا، ڈائسینٹری، ریکرنٹلی لوز موشن، بار بار پیٹ کا خراب ہونا، سیلیک ڈیزیز، IBS، IBD، بچوں کے موشن، بڑوں کے موشن، چونکہ گرمی کا موسم ہے، اور ایلوپیتھک طریقہ علاج میں بہت فاسٹلی ڈرپیں لگائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے۔ تو آج میں آپ سے اس ویڈیو میں ایسے کلینکل ٹپس آپ سے شیئر کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کا مریض گھنٹوں منٹوں میں ریکور ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا مریض ڈرپ لگانے کی ضرورت نہیں آئے گی، اور آپ کے مریض کو فاسٹلی اس کو جو ہے فرسٹ ایڈ ملے گا، اور اس کے بعد میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بتاؤں گا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ڈائریا، لوز موشن، ڈائسینٹری، بچوں کی دانتوں کی وجہ سے لوز موشن، کرانک لوز موشن، سیلیک ڈیزیز، IBS، IBD۔ بعض اوقات آپ کے پاس اور مرض کے لیے مریض آئے ہوتے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ ہے، کبھی کبھار پیٹ بھی خراب ہوتا ہے، اس کے حوالے سے۔ تو آج ہم لوز موشن یعنی پیٹ کا بار بار خراب ہونا، لیبل تو بہت کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس سمپٹم کیا ہوتا ہے کہ مریض کا پیٹ خراب ہے، یا بار بار پخانے کے لیے جاتا ہے، یا کھانے کے بعد فوراً اس پخانہ کرنا، نرم پخانہ کرنا، یعنی دست کا ہونا۔ تو ٹاپک ہمارا یہی ہے، درمیان میں جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے، جو ڈائگنوسس ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے لوز موشن یا ڈائریا یا ڈائسینٹری یا پیٹ کا خراب ہونا آپ سب کو پتہ ہے کہ کیوں ہوتی ہے۔ جب بھی فارن باڈی مین کی ایسی کوئی چیز باہر سے اندر آ جائے جس کی وجہ سے ہمیں لوز موشن ہو۔ اب یہی لوز موشن یعنی فارن باڈی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لوز موشن کیوں ہو رہا ہے۔ لازمی بات ہے کہ مریض نے کچھ غلط کھایا ہوگا، کوئی ٹنڈا کھایا ہوگا، یا ایسی کوئی چیز کھائی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو لوز موشن ہو گئے، جسے ہم فوڈ پوائزننگ بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہی فوڈ پوائزننگ، یہی ڈائریا یا یہی پیچس یا یہی ڈائسینٹری غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے، یا صحیح طرح ٹریٹمنٹ نہ لینے کی وجہ سے، یا اور کوئی وجوہات کی بنا پر اتنی کرانک ہو جاتی ہے، پھر جسے ہم ڈائسینٹری یا سیلیک ڈیزیز یا IBS، اس میں پھر بعد میں بات کی جائے گی۔ یہ میں ویسے آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیزیز اتنی کرانک ہو جاتی ہے کہ پھر بعد میں جو ہے نا فائنڈنگ میں کچھ اور بیماری آ جاتی ہے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ہم ڈائریا، ڈائسینٹری اگر آپ کے پاس مریض آئے تو اس کو ہم کیسے فاسٹلی ہینڈل کریں کہ مریض کو منٹوں میں آرام ہو۔ بعض اوقات ایسے پیشنٹ بھی آپ کو آئیں گے جی گھر میں مریض ہے، کل سے اس کو پیچس ہے، 2 دن ہو گئے، صبح سے ہے، گھنٹے سے ہے، تو آپ کو بتائے گا کہ ایسی دوائی دو کہ صبح دوپہر تک ٹھیک ہو جائے، کل اس نے ڈیوٹی بھی جانا ہے۔ ایسی دوائی دو کہ 2-3 گھنٹے بعد وہ ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، تو آپ اس کے لیے تو ایسے ادویات ہمارے ہومیوپیتھی میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر مریض کو بتائیں گے کہ آپ مہینے علاج کریں، نہیں جی، مہینے علاج وہ مریض کریں گے جس کا سالوں سے ایک مرض ہو۔ سالوں والا مرض آپ کا گھنٹوں میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور جو فاسٹ آتا ہے، جو کہ ایکیوٹ ڈیزیز آتے ہیں، جو کہ روٹین میں جو بیماری آتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا آپ نے مریض کو کبھی بھی جو ہے نا ہفتوں کا ٹائم نہیں دینا، یہ آپ نے گھنٹوں میں ہینڈل کرنا ہے، بلکہ منٹوں میں ہینڈل کرنا ہے، اور وہ ٹپس اس ویڈیو میں آج میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اچھا، آپ کی سب سے جو سٹارٹ میں 1-2-3 باتیں میں بھول گیا ہوں، یہ ویڈیو صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور سٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ پبلک نہ اس کو فالو کرے اور نہ اس کو یہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ ان کو سمجھ آئے گی، یہ صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور سٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ اچھا، لوز موشن آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتا دیا کہ فارن باڈی یا فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے۔ تو آپ کی جتنی بھی فارن باڈی ہے، یا چاہے وہ وائرل ہو یا بیکٹیریا ہو، یا کچھ آپ غلط کھا چکے ہو، یا آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو گیا، تو سب چیز کی اینٹیڈوٹ مین کہ ان کے اثرات ختم ہو جائے۔ آپ کی نقص و کمی کا بہت بڑی میڈیسن ہے۔ سمپٹم کیا ہے
सिम्टम ये है कि मरीज को पेचेस आ रहे हैं, या उसको दस्त है, या उसको डायरिया है, या उसको डाइसेंट्री है, उसका पेट खराब है। क्यों है? उसने कुछ गलत खा लिया, या कोई वायरस आ गया, या कोई बैक्टीरिया आ गया, या पेट में कीड़े हैं। अच्छा, अलामत क्या है? दस्त है। बीमारी क्या है? अलामत क्या है? उसको पेचेस है, बार बार पखाने पे जाता है, पेट में दर्द है, ये सिम्टम है। डायग्नोसिस में क्या आता है? अगर पखाना में उसका खून आ रहा है और पेट में साथ दर्द भी है तो इसको हम डाइसेंट्री लेबल करते हैं। और अगर सिंपल पेचेस है और पेट खराब है, बार बार जाता है, तो उसको हम लेबल क्या करेंगे? लूज मोशन या डायरिया। और अगर साथ पानी की कमी आ गई तो उसको हम डिहाइड्रेशन या उसको डिहाइड्रेट लेबल करेंगे। अच्छा, इलाज कैसे करना है? ये थोड़ा बहुत वीडियो लंबी होती जाएगी, लेकिन अब डायरेक्ट भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये दे, आपका मरीज ठीक हो जाएगा। लेकिन जब थोड़ी सी डिटेल से बात होगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि मर्ज क्या है, वजूहात क्या है, डायग्नोसिस क्या है और इलाज कैसे करना है। तो बात हो रही थी कि डायरिया की वजूहात क्या है? फॉरेन बॉडी क्या आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई गलत खा गए, उसको एंटीडोट क्या करेगा? नक्सवमी का। तो स्टार्ट में आपने नक्सवमी का 1 mg की एक डोज हर उम्र में हर मरीज को लाजमी देना है। एक खुराक आप, एक पुड़ी आप नक्सवमी का 1 mg दे। और उसके बाद बिसिलिनियम। अच्छा, बिसिलिनियम हम क्यों देते हैं? बिसिलिनियम को अगर आप बोरेक में पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है, नीचे एंड लाइन में लिखा हुआ है कि क्रॉनिक डायरिया या डाइसेंट्री, क्रॉनिक लूज मोशन। तो आजकल तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम मरीज को नक्सवमी का दे के उसको बेच दे के आप अगर ठीक ना हुए तो दोबारा आ जाना, नहीं। उसको बिसिलिनियम आप दे ताकि आपका मरीज ना दोबारा आपके पास आए, ना किसी और डॉक्टर के पास जाए, और वो फास्टली रिकवर हो। तो जब आप बिसिलिनियम दे के अगर कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो भी वो किल करेगा, और सिम्टम की भी आपकी दवाई चली गई। और ये नक्सवमिका की फॉलोवेल भी है। इसके बाद आपको एलोस की अलामत यह है कि मरीज अपना पखाना काबू नहीं कर सकता है, यानी बार बार वॉशरूम का जाना, वही सिम्टम आ गई, पखाने का काबू ना करना। एक डोज आप एलोस की दे दें, एक डोज नक्सवमिका की गन वाला आपने एंटीडोट कर दिया। बिसिलिनियम आपकी एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल हो गई है, क्रॉनिक मोशन की होगी, और एलोस की तो अलामत है। अच्छा, ये बाज दोस्त या बाज डॉक्टर मेरे साथ जो है ना वो इख्तिलाफ भी करेंगे, इख्तिलाफ आप करिए, आपका हक है। लेकिन इंशाल्लाह ये 3 पुड़िया जब आप, अगर आपके पास मरीज इमरजेंसी में है, आप घंटे घंटे बाद दे दो, 5-5 मिनट बाद दे दो, 10-10 मिनट बाद दे दो। अगर मरीज थोड़ा वो रिकवर है तो आप 3-3 घंटे के वक्फे से सुबह दोपहर शाम दे दें। आपका मरीज इंशाल्लाह इस 3 पुड़ियों से अगर 100% ना हो तो 60-70% वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप जो उसकी अलामत बनती है, अलामत क्या बनेंगी? अगर मरीज को शदीद पेट में दर्द भी हो रहा है और पखाने को भी बार बार जा रहा है, अगर मरीज बार बार टेनेसनेस है, उसको क्रैम्प्स है पेट में, तो मैं तो मरक्साल देता हूं, फिर आगे 200 में सुबह दोपहर शाम, बच्चों को 30 में सुबह दोपहर शाम, 15 दिन की खुराक देता हूं। या अगर एक्यूट पेशेंट है, हफ्ते की दवाई देता हूं, तकरीबन 1-2 दिन में रिकवर हो जाता है, हफ्ते में मुकम्मल ठीक हो जाता है। और मरीज को आप ये बताए कि आप नरम खुराक का है, केला का है या दही का है वगैरह वगैरह, वो आपको पता है। इसके अलावा अगर पेशेंट आपका क्रॉनिक है, ये मोशन बार बार आते हैं और पेट में दर्द है, क्रैम्प्स है, तो आप मरक्साल की बजाय कोलोसिन 200 में सुबह दोपहर शाम या 30 में सुबह दोपहर शाम, स्टार्ट में ये 3 पुड़ी आपने लाजमी देनी है। अगर पेट में दर्द थोड़ा थोड़ा है या कम है या ना होने के बराबर है तो आप पोडोफाइलम दे 200 में सुबह दोपहर शाम या 30 में सुबह दोपहर शाम, बच्चों को 30 में, बड़ों को 200 में। स्टार्ट में ये 3 पुड़ियां लाजमी देनी है। ये आप समझो कि हर डायरिया या डाइसेंट्री के मरीज को या लूज मोशन के मरीज को लाजमी देने हैं। इसके बगैर आपका मरीज ठीक होगा ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन इससे मैंने स्टार्ट में बता दिया कि फास्टली ठीक होगा। फास्टली मीन कि आपका मरीज किधर और जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने काज भी पकड़ ली। काज क्या थी? फॉरेन बॉडी, वायरस, बैक्टीरिया या फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग की बहुत सारी अदवायात है, जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूं यही है, लेकिन जो मैं क्लिनिक में करता हूं और जिसके मुझे 99.9% रिजल्ट मिले, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे आपने कोई सिर्फ कंपाउंड वगैरह या XYZ साथ और दवाइयां मेरे जो मैं बता रहा हूँ इसके साथ नहीं देनी, वरना आपका मरीज खराब होगा। अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं जो आपने बताया था
हमने वो भी दे दी साथ और भी दे दी, तो मसला ये होता है कि वो मरीज ठीक ही नहीं होता, क्योंकि वो फिर दवाइयों की फायर होती है। तो मरीज अगर 2-3 मेडिसिन ठीक से ठीक होता है तो क्या जरूरत है कि हम मरीज को 12-14-15 मेडिसिन खिलाएं। उम्मीद है इंशाल्लाह कि समझ आई होगी। तो स्टार्ट में नक्स भी सिलीनियम एलोज आप दे, हर मरीज को दे, और उसके बाद उसकी जो अलामत है, ज्यादातर अलामत को आपको पोडोफाइलम की मिलेगी। पखाना पीला होगा, बार बार होगा, थोड़ा थोड़ा सा पेट में दर्द होगा। आप पोडोफाइलम अगले दिन फिर 200 में सुबह दोपहर शाम, या 30 में बच्चे का सुबह दोपहर शाम। ये नुस्खा जो है इंशाल्लाह आपके मरीज का, आपके 60-70% बल्कि 80% आपके मरीज ठीक करेगा इंशाल्लाह। उनको मोशन घंटों में रोकेंगे, 2-3 दिन में मुकम्मल ठीक होगा। आपके पास पेशेंट आए कि मुझे बार बार पखाना नरम होता है, अक्सर मेरा पेट खराब रहता है, तो भी आप जो है ना यही दवाइयां दे। सिर्फ सिम्टम लेके पेट में दर्द मरोड़ आते हैं, बार बार पखाना, अगर दर्द मरोड़ आते हैं साथ खून भी मिला होता है, तो आप मरक्साल दे, नक्स भी सिलीनियम एलोज एक पूड़ी और आगे आगे मरक्साल दे। अगर आपके कि नहीं सिर्फ सिंपल दर्द है और पेन है और खून शून नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा दर्द है, पोडोफाइलम की अलामत, पोडोफाइलम में पीला पखाना आता है और 80% मरीज आपको पोडोफाइलम के मिलेंगे, तो आप नक्स भी सिलीनियम एलोज देकर आगे फिर पोडोफाइलम दे। इसके अलावा ऐसे पेशेंट भी आपके साथ आएंगे जिनको म्यूकस यानी म्यूकस आते हैं पखाने में और यही अलामत होते हैं, तो आप क्या करेंगे, नक्स बिसिलीनियम के बाद एक डाइसेंट्री को, ये जिस डाइसेंट्री की नसोड़ है, एक ये लगाए तो जो पसे पुसे केस है वो इससे ठीक होंगे। इसके अलावा आपके पास ऐसे बच्चे भी आएंगे जो कि दांत निकालते हो और उनको मोशन है, तो यहाँ पे भी आपने यही नक्स बिसिलीनियम में लो, क्योंकि वो बच्चे होते हैं तो आप 200 में दे, और अगले दिन आप उनको कल्किरिया फास्ट 30 में सुबह दोपहर शाम, साथ अगर रोना धोना है, वीपिंग टेंडेंसी है तो कैमोमिला साथ 30 में सुबह दोपहर शाम दे। जो ड्यूरिंग डेंटेशन उनको मोशन वगैरह तो इससे ठीक होंगे इंशाल्लाह। ऐसे बच्चे भी आपके पास आएंगे कि जिनको अक्सर पेट खराब रहता है या बार बार पेट खराब रहता है, तो उनको भी आप नक्स बिसिलीनियम 200 की एक डोज एलोज और पोडोफाइलम आप उसके बाद जो है ना 30 में आप सुबह दोपहर शाम दे। इसके अलावा ऐसी भी पेशेंट आपके पास आएंगे कि जिनको जो कि सीवियर डिजीज लेवल होंगे, जो कि IBS लेवल होंगे, जो आपको कहेंगे कि मुझे IBD है या मुझे ग्लूटेन एलर्जी है। अच्छा, इसमें अलामत क्या होता है? देखिए, ये तो डिजीजेस है, ये तो डायग्नोसिस है, लेकिन होम्योपैथी में बल्कि अक्सर चाहे एलोपैथिक में भी हो, सिम्टोमेटिक भी आप अप्रोच करेंगे। सिम्टम क्या है? मरीज को मोशन है, पेट में दर्द है, तो चाहे वो सीलियक डिजीज हो चाहे IBS हो, लेकिन मरीज को लूज, इसमें अलामत मेजोरिटी आपके पास लूज मोशन, मरीज की जो है ना पेट बार बार खराब होगा, तो इसमें आप यही अप्रोच करेंगे। नक्सोमी का लाजमी देना है, बिसिलीनियम देनी है, और उसके बाद डाइसेंट्री को देना है और एलोज देने हैं। उसके बाद अलामत अगर मरक्साल के हैं तो मरक्साल 200 में सुबह दोपहर शाम, और अगर कोलोसेंट के शदीद दर्द है तो कोलोसेंट दे। अगर सिर्फ मोशन है, पीले पीले मोशन है, दर्द नहीं है, तो आप पोडोफाइलम दे। आपका सीलियक डिजीज, IBS, IBD, पेट का बार बार खराब होना, ग्लूटेन एलर्जी, इसी अडर से ही ठीक होगा। लेकिन क्रॉनिक पेशेंट में आपने 15 दिन बाद ये मेडिसिन रिपीट करते जाना है। एक्यूट में आपने रिपीट नहीं करना है, वो ना रिपीट करने की जरूरत है। अच्छा, बात हो रही थी लूज मोशन के हवाले से कि आपके पास पेशेंट आएंगे, वो लेबल होंगे कि जी इसको ग्लूटेन एलर्जी है, इसको सीलियक डिजीज है। आप इन टर्मिनोलॉजी के नाम से ना डरे और ना टर्मिनोलॉजी के नाम के पीछे भागे। आप सिम्टम देके देखिए, हर तरीका इलाज में, चाहे वो एलोपैथिक तरीका इलाज है, चाहे होम्यो है, चाहे हिकमत है, अगर मरीज को सिम्टोमेटिक है, यानी उसको जो तकलीफ है, तो आपने सिम्टोमेटिक मेडिसिन देकर आपने पैथोलॉजी को भी ठीक करना है और आपने मरीज की सिम्टम को भी ठीक करना है। अगर मरीज एसिम्टोमेटिक है, अभी देखिए हेपेटाइटिस A, B, टाइफाइड, H पाइलोरी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज है, तो अगर ये पॉजिटिव आ जाए और मरीज को कोई तकलीफ नहीं है और उनकी PCR या आगे जो मजीद जो उनकी कंफर्मेशन टेस्ट है, अगर वो नेगेटिव आ जाए, तो आपने तो फिर ट्रीटमेंट नहीं करना है। मतलब ये कि आपने सिम्टोमेटिक अप्रोच करके आप जो ये टर्मिनोलॉजी है या ये जो डिजीज है, डायग्नोज है, इनसे आपने इनकार नहीं करना है। ये डायग्नोसिस है,
لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, ڈائگنوزس کے ساتھ جو سمٹم ہے تو آپ نے سمٹمیٹک علاج کرنا ہے. جس طرح ایلوپیتھک طریقہ علاج میں اگر مریض کو پیٹ میں درد ہے, اس کو لوز موشن ہے, تو وہاں پہ کیا دیتے ہیں, کیونالون اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, اور وہاں پہ ساتھ اینٹی اسپاسموڈک یعنی پیٹ درد کے لیے میڈیسن دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ کیا دیتے ہیں, میٹوڈین یا فلائجل یا اینٹامائزول وغیرہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر مریض کو میوکس آ رہا ہے اور اس کو خون آ رہا ہے تو وہ اینٹامائزول یا میٹوڈین ٹائپ میڈیسن دیتے ہیں, جو کہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ کا جو ہے کنسپٹ کلیئر ہو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ بعض اوقات دیکھیں یہ وہ کیا کرتے ہیں, سمٹم کیا ہوتے ہیں, سمٹم ہوتا ہے پخانہ میں خون آ رہا ہے, پیٹ میں درد ہے, ہوتا کیا ہے, لوز موشن ہی ہوتا ہے, ڈائسینٹری ہوتا ہے, دست ہوتا ہے, لیکن وہ بھی سمٹمیٹک یعنی علامات جو ان کے سمٹم ہے اس پہ دوائی دے کے ڈیزیز کو وہ کل کر رہے ہوتے ہیں. مریض کو کیا ہوتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے, پانی کی کمی ہوتی ہے, تو وہ او آر ایس پہ لاتے ہیں. آپ کی دوائی کون سی ہے, چائنا. چائنا آپ کی مریض کی ڈی ہائیڈریشن ٹھیک کرے گی. جب او آر ایس سے وہ ٹھیک نہ ہو تو کیا کرتے ہیں, ان کو پھر رینگولر ڈی یا رنگر والے ڈرپ لگاتے ہیں, جس میں سالٹ کی مقدار یا پوٹاشیم جو بھی پیچس میں جو نبکیات یا الیکٹرولائز جاتے ہیں تو وہ والا ڈرپ اس کو لگاتے ہیں. کیا ہوتا ہے, مرض پیچس ہی ہوتا ہے. علاج کون سا ہو رہا ہے, جو اس کے علامات ہے, جو اس کی سیویریٹی ہے, جو اس کی تکلیف ہے. ٹھیک اسی طرح ہم ہومیوپیتھی میں بھی سمپٹمیٹک اپروچ کر کے ڈیزیز کو ہم کل کر آپ سارے علاج کر رہے ہوتے. یہ نہ کہے کہ میں مریض کا علاج کرتا ہوں, مرض کا علاج نہیں کرتا ہوں. یہ ہمارے اکثر ہومیوپیتھ یہ بات کہتے ہیں, لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بعض بلڈ پریشر کے مریض کو آپ بیلاڈونا دیتے ہیں, آپ ان کو گلونائن دیتے ہیں, آپ راولفیا دیتے ہیں, آپ لیکسس دیتے ہو, لیکن کیوں دیتے ہو, سمٹم بیس پہ دیتے ہو. سمٹم کریٹ کہاں سے ہوتی ہے, پیچھے ڈیزیز ہوتا ہے. تو آپ سمپٹمیٹک دیکھیں, ایلوپیتھک میں بھی بلڈ پریشر کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کڈنی کی وجہ سے ہے, ہارٹ کی وجہ سے ہے, کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ کی وجہ سے ہے, ہو رہا ہوتا ہے کس چیز کا, مرض کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو بات لمبی ہو گئی یہ اس لیے ہے کہ آپ کا تھوڑا کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے. اب آپ کہیں کہ سیلیم ڈیزیز کی بھی آپ نے یہ دوائی بتا دی, عام مرض کی بھی, آپ لوز موشن کی بھی آپ نے ناکبسیلینیم پوڈوفائلم بتا دی, آئی بی ایس کی بھی آپ نے یہی بتا دی, بچوں کی بھی یہی بتا دی, بڑوں کی بھی یہی بتا دی. تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ لوز موشن یا ڈائسینٹری یا ڈائریا یا سیلیک ڈیزیز یا بچوں کی دانتوں کی وجہ سے پیٹ, ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے, علامات یہی ہوتے ہیں کہ پیٹ خراب ہے. جس طرح ایلوپیتھی میں پیٹ خراب ہے تو ڈرپ پہ اینٹی بایوٹک, اینٹی اسپاسموڈک, اینٹی امیبک یا اینٹی ورم میڈیسن دیتے ہیں. وہ سمپٹمیٹک اپروچ کر کے ڈیزیز کا وہ علاج کرتے ہیں, ڈیبریڈیٹ وغیرہ, ایموڈیم. ٹھیک ہے, تو ٹھیک اسی طرح ہمارے ہومیوپیتھی میں بھی آپ نے کاز کو ریمو کرنا ہے, کاز ہمارا نقص ریمو کرے گا, کاز ہمارا بیسیلینیم ریمو کرے گا, کاز ہماری ہم نے سمپٹمیٹک اپروچ کر دی, نقص بیسیلینیم میلوز. اس کے بعد جو سمٹم ہے, سمٹم کیا ہے, پیٹ میں درد ہے, شدید درد ہے, تو آپ کولوسین 200 میں صبح دوپہر شام, بچے کو 30 میں, اگر تھوڑا سا کم ہے, ٹینیسمس ہے, مرکسال دے دیں 200 میں یا 30 میں. میں یہ کرتا ہوں, اس کے علاوہ دوائیاں اور بھی ہے. آپ کا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے, جو ذاتی کلینک میں کرتے ہو وہ کرتے جائیں, لیکن جو میں کرتا ہوں جس کے مجھے 100% ریزلٹ ملے ہیں, منٹوں میں, گھنٹوں میں, دنوں میں ریزلٹ ملے ہیں, وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اگر میں نے کہا کہ 80% 90% آپ کو مریض پوڈوفائلم کے ملیں گے, تھوڑا تھوڑا سا درد ہے, پخانہ پیلا ہے, بار بار آتا ہے, سٹارٹ میں آپ ہر مریض کے لیے پوڈوفائلم, نقص بیسیلینیم میلوز پوڈوفائلم 200 میں آگے صبح دوپہر شام یا 30 میں, سٹارٹ میں 3 پولیاں دے کے آگے آپ پوڈوفائلم کا سوچیں, درد شدید ہے مرکسال دے, اگر اس سے تھوڑا سا کم ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے نا مرکسال دے دیں. تو آپ آگے مریض کو یہ میں بار بار یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ یار وہ دوائی دے, یہ دے, کروٹنٹک دے, فلانا دے, ڈنگرا دے, آپ جو بھی دیتے ہو نا آپ دیتے جائے اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے, لیکن میں اپنی ذاتی تجربات جو میں خود کلینک میں کرتا ہوں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے, اور آپ آگے بھی اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں, اور آپ کو جو علم آ رہا ہے آپ کی ایکسپیرینس میں آ جائے تو اپنے آگے دوستوں, اسٹوڈنٹ ہومیوپیتھ کے پاس بھی ضرور شیئر کرتے جاؤں, تاکہ ہماری ہومیوپیتھی بھی پروموٹ ہو, انسانیت کا بھی بھلا ہو, اور ڈاکٹروں کو بھی فائدہ ہو.
तो कहने का मकसद ये है कि डायग्नोसिस आपके पास कुछ भी आ सकता है, यानी बाज़ औक़ात आपको होगा कि इसको तो सीलिक डिजीज है, इसको IBS है। आप घबराए ना, आप जो है ना बस सिम्टम पे आप जो है ना, सिम्टम आपके पास क्या होंगे। अगर मरीज को पेट में दोबारा दोहराता हूँ, शदीद दर्द है, आप उसी पेट में दर्द है या नहीं है, पेट में शदीद दर्द है, नक्बिसिलिन लोज देकर उसको आप मरक्साल देंगे। अगर उसको दर्द नहीं है, नक्बिसिलिन लोज या थोड़ा थोड़ा दर्द है, यानी दर्द शिद्दत से कम है, पोडोफाइलम दे। इंशाल्लाह 2 मेडिसिन से आपका मरीज नहीं किधर भी नहीं जाएगा, यानी वो ठीक होगा इससे। अच्छा, इसके अलावा बच्चों की मैंने बता दी ना, वो तो लेक्चर के स्टार्ट में बता दिए। बाज़ मरीज आपके पास ऐसी भी आएंगे कि उनका जिस्म शदीद ठंडा होगा, यानी वो मोटिलिटी लॉस कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आप नक्बिसिलिन एलोज देकर वोरेट्रम एल्बम दे तो इंशाल्लाह जो ये पेशेंट बहुत रेयर होते हैं, 2% 3%, लेकिन मैंने आपको दवाई बता दी। अच्छा, इसके अलावा बच्चे आते हैं आपके पास के हर वक्त कभी इनका सीना खराब, कभी इनका पेट खराब, कभी इनको क्या, कभी इनको क्या। ऐसे बच्चों को 5-6 नेट्रम 66 ये कमाल उन्होंने अभी लिक्विड में बनाई हुई है, मैंने खुद ट्राई की है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। पहले मैं बायोकेमिक्स में इस्तेमाल करता था, ये नहीं वो जो गोलियों में मिलता है, अभी मैं लिक्विड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, माशाल्लाह सेम रिजल्ट है। तो ऐसे बच्चे के हर वक्त पेट खराब रहे उनका बगैर अलामत के, बार बार खराब होना, हर वक्त खराब रहना, डायग्नोसिस जो भी हो, आप 5-6 दिन नेट्रम और 6 पहले दिन से फाका होगा, 15 दिन 20 दिन खाने से इनकी पेट मुकम्मल ठीक होगी, दोबारा इनका बार बार पेट खराब नहीं होगा। ये सिर्फ मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़ों में मैंने अप्लाई नहीं किए। आप बच्चों को ऐसे इस्तेमाल करें जिस तरह आपकी अपनी जाती एक्सपीरियंस है। आपके पास मरीज आएंगे जिनको लूज मोशन प्लस वॉमिटिंग, जो ही उल्टी करता है, खाता है तो उल्टी करता है, यानी फौरन खाने के बाद उल्टी भी करना और पेचस भी करना, पेचस उल्टी दोनों। तो यहाँ पे आपकी दवाई कौन सी है? फेरामेट। अगर का तरतीब कैसे होगा, प्रिस्क्राइब किस तरह करोगे, यही नक्बिसिलिन एलोज आपने स्टार्ट में नहीं भूलना है। और ये जो है जहां से हमने सीखा है, तो आप सबको पता है कि हम सबका उस्ताद मुहतरम डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, माशाल्लाह, वहां से हमने लेक्चर में सुना है और मैंने क्लिनिक में सैकड़ों दफा बल्कि हजारों दफा अप्लाई की है। और अल्हम्दुलिल्लाह लूज मोशन का मरीज जिसके लिए हम घबरा जाते हैं, मैं तो उसको कहता हूं कि आप 3 घंटे बाद आप ठीक हो गए। वहां से हमने सीखा, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, और मैंने आपसे शेयर कर दिया और आप आगे शेयर करें। और शेयर करने से अल्लाह ताला आपको और भी इल्म देगा और लोगों का भला भी होगा, आपकी होम्योपैथी भी प्रमोट होगी। तो मरीज जब उल्टी करे और पखाना दोनों, यानी उल्टियां भी हो और मोशन भी हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी फेरामेट दवाई बनती है। तो नक्बिसिलिन एलोज स्टार्ट में अपने लाजमी देना है और उसके बाद उस मरीज को फेरामेटेलिकम दे 200 में सुबह दोपहर शाम, बच्चों को 30 में इंशाल्लाह उल्टी भी रुक जाएगी और मोशन भी रुक जाएंगे। क्रोटेंटिक के हवाले से दोस्तों से सुना है कि मदर टेंचर में जबरदस्त कुर्ची, दोस्तों से सुना है कि कुर्ची भी मदर टेंचर में जबरदस्त रिजल्ट देती है, लेकिन खुद अप्लाई नहीं किया। अलबत्ता ऐसे दोस्तों से सुना है जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो खुद ट्राई नहीं किए। उम्मीद है जिन्होंने बताया है वो उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की है जो गैर अजमुदा हो। इंशाल्लाह अजमुदा है। आप पसे पुसे कैसे आप कुर्ची मदर टेंचर क्लिनिक में रखे, मरीज को 30-40 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिलाए। उन्होंने यही कहा कि आधे घंटे में मरीज के पेचस रुक जाते हैं। तो ये हो गया लूज मोशन के हवाले से, मेरे ख्याल में लेक्चर मुकम्मल हो गया। अच्छा, आपके पास पेशेंट आते हैं, इलाज आप किडनी का कर रहे हो, इलाज कुछ और कर रहे हो, वो या मैदे का कर रहे हो, गैस का कर रहे हो, आपको कहता है कि कभी कभार मेरा पेट भी खराब होता है, तो आप तो ऐसे नहीं करोगे कि उसका अलग इलाज करोगे। पोडोफाइलम आप 1 में दे, उसको बताओ जब भी पेट आपका खराब हो ये एक डोज ले लेना, 5-6 पुनिया दे उसको। यकीन माने उसकी, वो कहता है मैदा तो माशाल्लाह ठीक है, या जो बीमारी आप इलाज कर रहे हो, कहता है मोशन उसके बाद मुझे दोबारा नहीं हुआ। यानी हस्बे जरूरत आपके पोडोफाइलम और एलोज, बेशक आपकी मर्जी है एलोज दो या पोडोफाइलम दो। मेरे पास मरीज आते हैं, कहते हैं यार उधर मरीज को मोशन है, कोई दवाई दे दो। मैं कहता हूँ यार ये पोडोफाइलम एलोज की पूरी आप ले, आपका मरीज ठीक हो जाएगा, आपके मरीज की लूज मोशन या ये ठीक हो जाएंगे। ये उसको आप दे, ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है
इस बात करने का मकसद ये है कि आपके पास कोई आए कि यार मुझे कोई पुड़ी या दो की मरीज फौरन ठीक हो, तो एलोस्पोडोफाइलम 1 में आप हस्ब जरूरत भी किसी मरीज को दे सकते हो, लेकिन ये 100% नहीं, ये से तकरीबन 70-60% मरीजों के मोशन ठीक होते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि मोशन के हवाले से तो जो कुछ जितना मैं समझता था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया, और इसको अपने साथ डायरी में नोट कर लें, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह उसके हवाले से मैं रिप्लाई करूंगा। आपसे एंड में यही गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने होम्योपैथ डॉक्टर स्टूडेंट्स ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें ताकि वो भी उससे मुस्तफीद हो। और जितने डॉक्टरों ने या स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे जो हम होम्योपैथी के हवाले से वीडियो अपलोड करते हैं ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले। अस्सलाम वालेकुम।